Hello everyone, today I'm back with another video on digestion and absorption. So let's start. We'll do NCRT, each and every line we'll cover, and today I have something very interesting for you. Some different method of teaching I have just inculcated newly, and you are definitely going to like it. And I'm sure I don't have to say ki bear with me for this long video because I know you will get very interested when I tell you interesting facts and I'll make this chapter very interesting for you. So let's take 2-3 deep breaths and let's start. ओके सो पहले समझते हैं कि चैप्टर किस बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं. सो हम फूड लेते हैं, क्यों लेते हैं? हमें हमारे बॉडी में जो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जो हमारे इतने सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है टू मेक इट लिव एंड सर्वाइव. उसके लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी. यू नो दिस वेरी वेल. एनर्जी कहाँ से आती है? कंबशन से. किसके? फूड के. हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए टू मीट आर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट ग्लूकोज विल हेल्प टू प्रोड्यूस एनर्जी. वो अलग प्रोसेस है पूरा कि वो कैसे होता है, तो हम वो भी पढ़ेंगे बट बाद में. ओके सो अब होगा क्या? फूड हम कह रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने ग्लूकोज की बात की, या फिर और भी सबस्ट्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, है ना, कार्ब्स हैं और दूसरे. सो ये सब में हम कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम जो इतने बड़े फूड पार्टिकल्स हैं, दे डायरेक्टली कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, राइट? सो वी नीड टू कन्वर्ट देम इन सिंपल absorbable forms which can be done with the help of our digestive system. In fact, digestive system itself requires energy to perform all this function. Alright, so we will study this process of conversion of the complex food substances that we intake into absorbable forms. Alright, so let's start with the digestive system components. What does digestive system consist of? It consists of alimentary canal with the associated glands which give their secretions to enzymatic secretions and different types of secretions we'll study. Okay, to help overall, they help in digestive process. All right, sometimes they protect the mucosa. All right, or sometimes they kill the bacterial bacteria for which might come along with our food. All right, so these things are all done by glands. So these two components. Now we talk about alimentary canal की digestive system का एक component है alimentary canal. तो alimentary canal है क्या चीज़? Alimentary canal is actually the complete organs and all those things occurring between mouth and anus. Mouth, which leads to buccal cavity, then buccal cavity leads to pharynx, then esophagus, then we have organs like stomach, liver, pancreas, then the food goes into intestine, the small intestine, the large intestine, then the undigested or unabsorbed food stores in the rectum. Alright, so that it can be excreted out later on. That is the part of excretory system, वो अलग है. So let's actually start with the actual process now. The digestion starts in the mouth itself. Some sort of digestion starts in the mouth itself. Alright, हो जाता है, इसीलिए तो हम उसको digestive system में include कर रहे हैं, right? So first thing. Now mouth leads to buccal cavity, and what buccal cavity has? Buccal cavity consists of teeth and tongue. Alright. Okay, so mouth, then it leads to buccal cavity. Buccal cavity is also called oral cavity, which is also which consists of teeth and tongue. Okay,
It also consists of saliva, which is secreted from the salivary glands. But salivary glands are not a part of buccal cavity. This thing is to be kept in mind. Okay. This is the NCRT line also. We'll come across it later on. I have highlighted it. But अब आप अभी से याद रखो, इसलिए मैंने बता दिया है. Now बात अगर teeth की आई है, so teeth कैसे है हमारे पास? Thecodont. What is the meaning of thecodont? That they are embedded in a socket of jawbone. Alright, all our teeth are embedded in our jawbone, which is what? Mandible. Alright. The lower jawbone as well as the maxilla, which is the upper jawbone. ठीक है, दोनों में teeth we have in upper jaw as well and lower jaw as well, right? Okay, so majority of animals have two sets of teeth during their life, right? How come? They have temporary milk teeth, and in the this temporary milk teeth are found in the childhood stage, and later on the when in an adult human we have 32 teeth. Okay, and hence, since we have two teeth, first the temporary and then the permanent one, so this type of dentation is called diaphyodont. Okay, in childhood, we have the dental formula as 2012 because when this formula goes on like it tells, we all know that we have incisors, canines, and what premolars and molars. Okay, so in a child, and this dental formula goes in this manner only. See, in adult human, which are of four types, as I named them, four types, and this is incisor, canine, premolar, and molar. Okay, so in child, uh, in the child, one molar and all premolars are absent. One molar and all premolars are absent. I'm sorry for this. Abhi I told you, then I realized that I said something wrong. I'm really very sorry for that. Okay, but we always learn from mistakes, right? Alright. So I'll write this point down that premolars and one molar is absent in child, because you are sometimes asked the dental formula of a child, so you tell that dental formula of child goes like this. Okay, so now we know the reason also why the formula is like this. Okay, now the hard chewing surface of teeth is made up of enamel, which helps in mastication. Mastication means the chewing of food, and this enamel is actually this hardest substance. We call that enamel is the hardest substance in our body. So enamel is secreted by the ameloblast layer of cells. Okay, this is some extra information. Ameloblast layer, which is ectodermal in origin. Okay. Alright, now moving ahead, the tongue is freely movable muscular organ attached to the floor by frenulum. Okay, we call it lingual frenulum. जिससे टंग इज अटैच टू इट्स बेस. ठीक है, लाइक दिस इज अ टंग, है ना, पैपिले एंड ऑल, टेस्ट बड्स एटसेट्रा. So this is the lingual frenulum. The upper surface of tongue has small projections called papillae. Okay, these are papillae, and some of the papillae bear taste buds. All right, taste buds we all know, right? For sweet taste, bitter taste, etc. So some of those papillae bear taste buds. Now, oral cavity, as I told you, let's see this diagram once. This is the oral cavity which leads to the this is mouth, we came to oral cavity, and then this leads to pharynx. One important thing about pharynx is that it is the common passage for, see, it's written here, why to waste time in writing? It serves as a common passage for food and air. Alright.
Why? See, this pharynx divides into two things. See, we can see here, this is the esophagus, which is the food pipe, which lies posteriorly, and anteriorly lies the trachea or the windpipe. Okay, they are joined with each other. Now, what interesting thing I have for you, which I was talking about, is I have got diagrams for you. Diagrams which can make it easy for you to understand. See, this is mouth, this is right nasal cavity, and this is the mouth, this is the buccal cavity, and then we have pharynx region, which is the common passage, because then pharynx will go here, which will open into windpipe, and here it will open into food pipe, the esophagus. Right. Further on, the trachea will divide into bronchi, etc., and esophagus will move ahead and lead to the stomach. All right. So you can see the arrangement here, ki how they are arranged. The posteriorly lies the esophagus and anteriorly lies the trachea, and ये ऐसे joined रहता है, right? Okay. Now see one more image I have. Maybe we'll see that later on. Coming back. Yeah. Okay. So esophagus and trachea, I showed you more clearly how they are arranged. So it is इसलिए हम बोलते हैं this is the common passage for air, क्योंकि अभी तक ये यहाँ तक आए. Up now they'll divide. Okay. The food will go here and the air will go here. कुछ भी मिक्स नहीं होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? चोकिंग हो जाएगी. अगर फूड गलती से विंड पाइप में चला गया तो लंग्स में तो फूड नहीं जा सकता ना. तो दैट इज उसके प्रिवेंशन के लिए वी हैव अ सेफ्टी फैक्टर कॉल्ड द एपिग्लॉटिस, है ना? एपिग्लॉटिस. नाउ लेट्स read in the NCERT. The esophagus and trachea open into pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into glottis, which is the opening of windpipe during swallowing. Cartilaginous है तो we should know कि it is made up of elastic cartilage, है ना? Why? Because elastic cartilage is pliable, है ना? तो it can easily act like a flap. कि it will close and open so that it can prevent the entry of food into glottis. What is glottis? It is the opening of windpipe. All right. So elastic cartilage से बना है. ठीक है. Okay. The esophagus is a thin long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm, and leads to a J-shaped bag called stomach. Muscular sphincter, the gastroesophageal sphincter, regulates the opening of esophagus into stomach. Now we got to hear a new term, which is sphincter. What is actually a sphincter? It is basically a muscular thickening which can contract, matlab it's a muscular thickening. So when the muscle will contract, so it can regulate the opening and closing of this. Like when it will contract, you imagine a circular, it basically the circular muscle thickening. Abhi we'll learn the two layers, then you will get it more clearly. So it is a muscular thickening which when the muscle contracts, so it regulates the opening and closing of an organ, entry to an organ. Alright, I hope you have understood. For example, let's see, here is a sphincter, which is the gastroesophageal sphincter. Okay, I'm writing in short form. Okay, so this will regulate the movement of food from esophagus to stomach. Alright, by contractions, muscular contractions. Alright. Stomach, located in the upper left portion of abdominal cavity, has three major parts, which is the cardiac. Cardiac is this portion in which the esophagus opens, right? Cardiac portion into which the esophagus opens. Fundic region, which is this region, like this region is cardiac, जहाँ पर ये open होता है, उससे ऊपर का region is fundus,
and the pyloric region, which is this portion, the ending of stomach, which leads to duodenum. Okay, this is pyloric region. Now don't get confused कि ये रीजन क्या है, you will study later on वैसे, क्योंकि some people divided into cardiac, fundus and body and pyloric, because this rest part is called pyloric. But कुछ, क्योंकि some books don't consider cardiac to be the part, they call this as body. ओके कि ये फंडस हो गया ऊपर का रीजन एंड ये पूरा बॉडी हो गया. बट सिंस एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड, सो यू वोंट गो अगेंस्ट एनीथिंग दैट इट सेज. ओके, आई जस्ट टोल्ड यू फॉर नॉलेज पार्ट, बिकॉज एक चीज़ आती है दिमाग में कि ये फंडस हो गया, ये कार्डियक पार्ट हो गया जहाँ पर ईसोफेगस खुला, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या बचा, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट नेमिंग, नथिंग एल्स. Now pyloric opens into the first part of small intestine, and what is that first part? Let me change the color, it's so monotonous. It's duodenum. Okay, now one more contradicting thing you will get in NCERT for duodenum is whether it is C-shaped or it is U-shaped. Okay, but since it is contradictory, so you won't get it as a question most probably. It is, the small intestine is distinguishable into three regions: a C-shaped duodenum, a long coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum. Okay, now you would wonder why are they highly coiled or something? Because they are very long. So to accommodate this approx this much. Okay, so to accommodate this small intestine into this small region, otherwise 2.5 मीटर लॉन्ग कितना लंबा हो जाएगा, राइट? आप कहाँ तक उसको स्ट्रेच करोगे? सो टू accommodate it in a small place, they have to be highly coiled. All right, and jejunum and ileum, these three parts we have. The opening of stomach is guarded by pyloric sphincter. The way we have sphincter here, see I told you, entry to the next organ you require sphincter for regulation. Okay, so that food can go and regulate the things, the sphincter. Okay, so we have a pyloric sphincter here. Okay, now इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम कहाँ तक पहुँच गए? डिओडनम तक पहुँचे. देन उसका कंटिन्यूएशन आया डिओडनम, जेजुनम, इलियम, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट. लेट्स मूव हेयर. वी हैव अ बेटर डायग्राम हेयर. या लेट्स यूज दिस. Food comes here, sphincter goes here, digestion takes place, sphincter then goes here in duodenum. Alright, then it moves into small intestine, more parts of small intestine. देखिए, ठीक है, ये the more coiled parts which is the jejunum and the ileum. Ileum is the lower part. Okay, then it leads to cecum. Here also, now since again we are moving from one to another, so here we have ileocecal valve. Why do we have that valve? Valves का काम क्या होता है? They prevent backflow of substances, right? So since in small intestine we gather usually undigested food, to prevent it from going back to the small intestine, here is a valve. Okay, so it prevents the backflow of those undigested substances into back to small intestine. So we have ileocecal valve. It leads to cecum, which is a part of large intestine. Then cecum has this tail, like you can see this. This is a vestigial organ called the vermiform appendix. What is a vestigial organ? Vestigial organs are those which we reduce the use of those organs with time, so they get a little not, matlab they become non-functional. Why? Because it's assumed that if we don't use a particular organ or something in our body, so they with time, with time as in millions of years, they become a little non-functional. Why? Because there is no use of these organs. So वैसे it sometimes people
there is a condition known as appendicitis. You might have heard this commonly. So appendicitis में we often remove this, so there is not a big difference in that. Although कोई चीज़ है तो useless तो नहीं है, तो कुछ काम तो करती होगी. Vermiform appendix में क्या होता है? It gives home to some microorganisms, okay, which are of help. Okay, they help in production of vitamins, etc. All right. So then vermiform appendix is arising from cecum. Then it's leading upward to ascending colon. Ascending ऐसे ascend हो रहा है ऊपर की तरफ, तो this is ascending colon. This is transverse. Transverse को दूसरा नेम हम क्या देते हैं? horizontal. तो ये horizontally lie कर रहा है ना, इसलिए transverse नाम हो गया इसका. Then अभी नीचे आ रहा है, so descending colon हो गया. Then rectum and then finally anus. All right, this is the system. Now let's go through the NCERT lines. Cecum is a small blind sac which hosts some biotic microorganisms, as I told you. A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, I already told you, arises from cecum. It opens into colon. The colon is divided into ascending, transverse and descending part, as I already told you. The descending part opens into rectum, which opens into anus. This is all done with the diagram. Alright, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको. I hope this. Now, moving on to the what is the alimentary canal wall is made up of. अभी हम पढ़ रहे हैं कि esophagus है, ये है, वो है. तो ये जो wall है basically इसकी वो किन किन चीज़ों से बनी है, ठीक है? तो it possess 4 layers. कौन कौन सी? Serosa. Let me change the color again. Okay. Serosa. Majorly we have divided into 4 layers. The serosa muscularis. Muscularis further divided into 2. And submucosa and mucosa. Alright. So serosa is the outermost. I have arranged from outside to inside. Okay. Serosa is the outermost layer and is made up of a thin mesothelium. Now, what is mesothelium? You would wonder. Mesothelium is what? Basically epithelium, but of visceral organs, right? जैसे hollow organs हैं, ये esophagus है, stomach है, इन सब के जो epithelium होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Mesothelium, ठीक है? So it is the outermost layer. It has some connective tissues. All right. Now muscularis is formed. Now muscularis तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होंगी इसमें muscles. Now here is what I was talking about. It has 2 layers. The inner circular layer, okay, circular muscle layer. अब आप assume कर सकते हो कि एक circular layer और एक longitudinal layer है, ठीक है? Circular layer अगर contract करे, obviously this is muscular, तो क्या role है इसका? कुछ contraction का role है, ठीक है? If it will contract, तो it will lead to decrease in diameter. Right, and if longitudinal will contract, it will lead to decrease in the length, right? This is understood, I hope. Still I'm writing the things so that you can remember. Oh, alright. So this is decrease in length. Now what happens? Why are these muscles necessary? As we know, the way we intake food, we need the food to propulse downward. Although gravity has some role, but the muscles are also required to make that food propel downwards. Alright. So longitudinal muscle, since it decreases in length, so when it contracts, so it decreases in length, and when it relaxes, it comes back to its original position, and this helps in propulsion of food downwards. And these movements of contraction and relaxation are called as peristalsis. Okay, so this helps in the peristaltic movement, right? And one more thing, how come this thing now, circular muscle? One thing which I told you, application is of sphincter.
basically sphincters usually have more thick layer of circular muscles. Circular muscles will also help in propulsion of food, like right, they will contract and relax, so it will help in propulsion of food. Plus these both muscles will also help in mixture or mixing the secretions which are secreted by various glands, right? So one more thing here, some regions might have an additional layer which is the oblique muscle layer. It is present in stomach, by the way. And what does it do in stomach? Specifically, it performs churning movements in stomach. Okay, for better digestion. We'll study further. Now moving ahead. Uh, what? Where were we? Yes. Now comes the submucosal, the next layer, submucosal layer, which is made up of connective tissues containing nerves, blood and lymph vessels. ऑब्वियसली अब ये एक ऑर्गन की ही लेयर है एलिमेंट्री कैनाल में, तो इनको क्या चाहिए, नर्व सप्लाई भी चाहिए, ब्लड सप्लाई भी चाहिए, है ना, लिम्फ वेसल्स भी चाहिए. सो वो कौन सी लेयर में आ जाते हैं, सबम्यूकोसल लेयर में. ऑलराइट. In duodenum, glands are also present in submucosa, and in gland का आप name याद रखना, because it is sometimes asked. These glands, the more important ones, these are called the submucosal glands. Oh yeah, I'm sorry. The other name is submucosal. They are already present in submucosa, so you can obviously conclude that yourself. These are called the Brunner's glands. Right, I'm sorry. Okay. Also called submucosal glands. The innermost layer lining lumen is this mucosa. Okay. Now mucosa itself consists of epithelial layer and a muscle layer, right, and some loose connective tissues, right. What is the main modification of this mucosa is the modification of this epithelial tissue. How? This forms irregular folds rugae in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. Alright, and what is the use of this? This increases the surface area of the tissue. Alright, the cells lining the villi produce numerous microscopic projections called the microvilli. And now epithelial tissue में, I don't know you have studied that chapter or not, but मैंने नहीं पढ़ा है, तो I am considering कि you don't know about that. So in small intestine, this villi is found. Okay, as is written here in the small intestine. So small intestine is basically involved in absorption, right? So for absorption we need more surface area, right, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा absorption हो सके, कुछ waste ना हो. So we will study in the tissues chapter that in epithelial tissue we have different type of cells. We have squamous cells, we have cuboidal cells, we have columnar cells. So here in small intestine we have columnar cells. Okay, I think I should change color. We have columnar cells. Where should I write? Columnar cells. And this, what is the speciality of these columnar cells? They have brush border epithelium. Now what is meant by brush border epithelium? They have mentioned that these villi have microvilli on the cells, giving a brush border appearance, okay, which helps in absorption. These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. Okay, इसमें एक important ये lacteal है, ठीक है. Villi में देखो आप, you can see in this diagram. अभी I'll show you one more diagram. See this villi, you can see these are this what modifications. यहाँ पर see, ये जैसे यहाँ पर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं, लाइक यू अज्यूम अ ट्यूब एंड फिर हमने उस ट्यूब को कट कर दिया और हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही दिखेगा. तो ये वही ट्रांसवर्स सेक्शन है जो भी हमने पढ़ा. नाउ व्हाट, ये हम यहाँ सबसे अंदर ये हमने सिरोसा पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया. अब हम आ चुके हैं इस रीजन में
म्यूकोसा रीजन में जो इनर मोस्ट है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे यू कैन सी दीज फोल्डिंग्स, राइट? So these are different modifications of epithelia. So likewise here in small intestine we have these modifications and these are called as villi. Okay, and these villi, see, as you can see, they have this capillary network. So they have arteries. Okay, then these are capillaries, these are venules, arterioles, right, to provide blood supply and this thing. Now, and a large lymph vessel as well, lacteal. This is important here because lacteal will later on help in absorption of fat. You will learn further in this chapter itself. देन म्यूकोसल एपिथेलियम, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि फोल्डिंग्स आ गई, इसमें और क्या होता है, इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, विच सिक्रीट म्यूकस। गॉबलेट सेल का फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना। नाउ व्हाई म्यूकस? टू हेल्प इन लुब्रिकेशन सो दैट द फूड कैन गेट इजीली लुब्रिकेटेड एंड हेंस कैन प्रोपेल फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो लुब्रिकेशन एंड म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक गॉबलेट सेल देख लिया जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। अगर हम स्टमक की बात करें तो वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ना, तो वहाँ पर म्यूकोसा की जो एपिथेलियल लाइनिंग है, अभी हमने वी जस्ट रेड समवेयर दैट इन एनसीईआरटी इटसेल्फ दैट रुगे, स्मॉल इरेगुलर folds called rugae are found in stomach. These are also the modification of mucosa. ठीक है, mucosal modifications. So in stomach also we have mucosa modified as this. Then crypts in between the bases of villi in the intestine. See, you can see these are villi as I told you. Now you also see something is coming out of here like this. Between villi you have crypts. Crypts in between the bases of villi. On the base side you have this. See, crypts, and these form the crypts of liver cone. This is again an important thing. Crypts of liver cone. They also have goblet cells which can secrete mucus. They have Paneth cells. They have Argentophin cells. They have many types of cells. Okay, so as to just help in lubrication or this digestion absorption process. ठीक है, I'm sorry. So all the four layers show some sort of modifications in different parts of alimentary canal. Okay. Now digestive glands. We will study further about this also. Intestinal glands होते हैं, ठीक है. Okay, now बात करते हैं digestive glands की. The digestive glands associated with alimentary canal include the salivary glands, liver and pancreas. Okay. Now saliva की अगर हम बात करें तो it's produced by 3 pairs. Now this is also a question जिसमें लोग गलती कर देते हैं कि 3 बोल देते हैं पर 3 pairs है, ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड के कौन कौन से? पैरोटिड glands, okay, which are found in cheek, and when these swell up due to bacterial infections they cause mumps. Okay, bacterial infection, so they swell. Okay, the submaxillary or submandibular, these are found in the lower jaw, and the sublinguals. Lingual comes from the tongue word. Tongue, अभी हमने पढ़ा भी था lingual frenulum, so the place where the tongue was attaching to the floor of buccal cavity. So lingual is related to the word tongue. Okay, so sublingual means below the tongue. These glands, this is an important line. These glands situated
just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. Abhi I just told you when I was talking about buccal cavity that buccal cavity consists of teeth and this only tongue, right? But it consists of saliva also, I told you, but not the salivary glands. They are not found in buccal cavity though, but saliva is found because abhi humne yahan NCERT line mein bhi पढ़ लिया that these glands are situated outside but they secrete them into the buccal cavity. और ये किससे possible हो पाता है? With the help of ducts. Okay, with the help of ducts वहाँ पे saliva बनता है और फिर ducts उसको buccal cavity में आके secrete कर देती है. Fine. Moving on, liver is the largest gland of the body. Okay, which is weighing about 1.2 to 1.5 kg in adult humans, situated in the abdominal cavity on the right side. Okay, right side. Left side पे we have stomach. Just below the diaphragm and has two lobes. Okay, इसके दो lobes होते हैं. ठीक है. Now see, liver है, इसमें क्या है? Lobes. अभी आप पढ़ोगे lobules. देखो, the hepatic lobules are the structural and functional units of liver. ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि हिपैटिक लोब्यूल्स है और लोब्यूल्स में क्या है? कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स. ठीक है, हिपैटोसाइट्स भी है. फिर तो कई बार बच्चों को लगता है कि मेन सेल जो है वो ही होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो हिपैटोसाइट्स होंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, वेयर एज दिस इज रॉन्ग. द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ओके, each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Gleason's capsule. This is a mammalian feature, a characteristic feature. So you need to remember this Gleason's capsule. Okay, that the lobule. Okay, these lobules are covered by Gleason capsule. ठीक? The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts. अब ये ducts जो यहाँ से लेकर जाएंगी, स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. वी ऑल हैव हर्ड दिस गॉल ब्लैडर. दिस इज अ थिन मस्कुलर सैक. सी यू कैन सी इट है. यहाँ से सी यहाँ लिवर होगा और यहाँ से डक्ट्स निकली, हिपैटिक डक्ट्स हो गई है, राइट. यहाँ पर हिपैटिक लिवर में क्या हुआ? हिपैटोसाइट्स ने बाइल बनाया एंड यहाँ से इन डक्ट्स में भेज दिया. डक्ट्स के थ्रू क्या हुआ? यहाँ जाकर अभी इतना सारा बाइल उन्होंने बना दिया तो कभी कहीं स्टोर भी करना है. हर वक्त तो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं चलेगा, तो कहीं स्टोर करने के लिए उन्हें जगह चाहिए, तो दैट प्लेस इज गॉल ब्लैडर. फिर जब गॉल ब्लैडर इसमें फंक्शन पूछा जाता है तो स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट. ओके, कॉन्सेंट्रेट करता है उस जूस को. ठीक है, जिससे कि उसका डाइजेशन में इफेक्टिवनेस बढ़े. ठीक है. And then I'm very sorry for these disturbances. Then इसमें कॉन्ट्रैक्ट, फिर जब ज़रूरत पड़ती है, जब डाइजेशन होना होता है तो हमारे पास हार्मोनल मैकेनिज्म्स हैं. ठीक है, लोकल हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहीं इन्हीं ऑर्गन्स से, तो वो स्टिमुलेट करते हैं गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को. देन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर यहाँ से जूस बाहर आता है, राइट. द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर विच इज कॉल्ड दी सिस्टिक डक्ट. ये यार याद रख लेना. ठीक है, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट में कंफ्यूज मत होना. सिस्टिक डक्ट हो गई, फिर क्या होगी? सिस्टिक डक्ट निकली यहाँ से और हिपैटिक डक्ट के साथ कंबाइन हुई एंड दीज फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट. ऑलराइट, देन कॉमन बाइल डक्ट के बाद क्या आ गया हमारे पास? यहाँ साइड में यू कैन सी दी पैनक्रियाज, another organ of our digestive system. So the bile duct and pancreatic duct. So you see the pancreatic duct? They have labeled it. ठीक है, ये भी यहाँ से कंटेंट्स लाएगी तो pancreatic duct and they open together into duodenum. इसके बाद कौन सा आएगा? duodenum में जाकर ये सब खुलेगा क्योंकि अब इन्हें कहाँ जाना है? जूसेस को यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलेंगे. ठीक है, ऐसे गॉल ब्लैडर से निकलेगा जूस, तो ये कहाँ जाना है? इनको आगे जाके डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है.
ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्यूडनम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेजर डाइजेशन होता है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। ऐसी माउथ में स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर फुल डाइजेशन, फर्दर मैक्सिमम एंड कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सारे एंजाइम्स को जाना है, ठीक। सो दिस विल अगेन, नाउ हम एक और दूसरे ऑर्गन में जा रहे हैं, तो अगेन वी नीड अ स्फिंक्टर। तो दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड, दी स्पेसिफिक नेम है हमारे पास, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, राइट। नाउ पैनक्रियास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको क्या इतना इग्नोर करना है ना। पैनक्रियास की अगर बात करें तो ये काफ़ी स्पेशल है, ये कंपाउंड ग्लैंड है, इसके पास एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब आपको एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पता है आई होप, बट मैं बताऊंगी ज़रूर आप लोगों को। देखिए, मैंने आपको वो विलाय वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखाया ना, मेरे को भी याद आया, अभी देख लो, अदरवाइज आई फॉरगेट, आई एम सॉरी। सी, ये विलाय हमने पढ़ा था, ये विलाय के जो सेल्स है ना, देखो यहाँ ये जो सेल्स है, इसको सेल्स को जूम करके दिखाया, हमने कहा कि कैसे है कॉल्यूमनार, यू कैन सी कॉल्यूमनार इलोंगेटेड सेल्स है, बेसल न्यूक्लियस है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कॉल्यूमनार सेल्स, ठीक है। और इनके जो सेल्स हैं, इनके मॉडिफिकेशन देखो, ये जो बाहर निकले हुए हैं, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, और ये इसको अपेयरेंस को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ब्रश जैसा नहीं लग रहा है, बाहर निकले हुए ब्रश जैसा लग रहा है, सो ब्रश बॉर्डर अपेयरेंस एंड हेंस माइक्रोवेलाई, एंड ये दोनों मिलकर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ऑलराइट, ओके। नाउ बात कर रहे थे हम पैनक्रियास की, तो उसका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन हमें पता ही है क्या होता है, हॉर्मोन्स, राइट। तो ये हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है, हम अगर आपने सुना हो तो इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। और एक्सोक्राइन में क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग सेल्स होते हैं हमारे पास। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या करता है, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, एल्कलाइन नेचर का, ठीक है। स्टमक में क्या होता है हमारे पास, स्टमक में बहुत एसिडिक पीएच होता है, ठीक है। वेराज वहाँ, क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम है प्रोटीयोलिटिक एंजाइम पेप्सिन, उसको फंक्शन करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। वेराज पैनक्रियाज का जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है, वहाँ पे एंजाइम्स को, पैनक्रियाटिक एंजाइम को और इनको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एल्कलाइन पीएच। तो अगर वहाँ से फूड आ रहा है स्टमक से नीचे ड्यूोडेनम में पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी कि अब वो जो एसिडिक फूड है, क्योंकि अब उसमें मिक्सचर तो है उसका, अभी वो एसिडिक इन्वायरमेंट से आ रहा है, तो उसको न्यूट्रल एल्कलाइन बनाने के लिए, जिससे कि एंजाइम्स फंक्शनल हो पाए, तो पैनक्रियास सिक्रीट करता है एल्कलाइन जूस, ठीक है। बाइकार्बोनेट सिक्रीट होते हैं so as to maintain the pH, right? So for enzymes to act, all right, so that digestion क्या ना कर, the ultimate thing तो हमें यही चाहिए कि digestion होए, ठीक। so now containing enzymes, या एक्सोक्राइन पोर्शन अगर हम बात करें तो हमारे पास होते हैं SNR cells। SNR cells क्या होते हैं, बेसिकली आई गिव यू एन आइडिया, ऐसा एक सैक टाइप होता है, यहाँ पर सेल्स होते हैं, ये अपने सेल्स जो है यहाँ पर सिक्रीशंस दे देते हैं, यहाँ ऐसे इस सैक में, इस कैविटी में, एंड यहाँ से जो डक्ट होती है, जैसे आपने देखा यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये पैनक्रियास सेल्स से बना हुआ, तो यहाँ पर ये अपने एसिड सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपना सिक्रीशन डाल देंगे एंड डक्ट से जो जूस है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो चले जाएंगे, ठीक है। अब पैनक्रियाज है तो कंपाउंड, लेकिन मेजरली उसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन, 99% SNR सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और एंडोक्राइन पोर्शन सिर्फ 1% है, जो स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, ये सेल्स का नाम है, ठीक है। ये वाले सेल्स सिक्रीट करते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, क्योंकि अल्फा जो होता है, डेल्टा, अल्फा क्या होता है, वो ग्लूकागन सिक्रीट करता है, बीटा क्या करता है, इंसुलिन। तो डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन भी होता है। देन
डाइजेशन पे हम आ ही जाते हैं फाइनली, ठीक है। अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया कि कैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कि अब फूड का हम इनटेक करने वाले हैं और अब समझते हैं कि कैसे कैसे डाइजेशन होगा। हमने एंजाइम्स वगैरह अब सब पढ़ के उनका एप्लीकेशन देखना है। नाउ process of digestion is accompanied by mechanical and chemical process. The buccal cavity performs two major functions. हमने देखा टीथ है, उसके पास टंग है, तो क्या करेंगे, टीथ च्यूइंग में हेल्प करेंगे, तो मास्टिकेशन हो गया फुलफिल। और फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलिंग, टंग क्या करेगी, ऑब्वियसली स्वॉलो करने में हेल्प करती है ना टंग, तो स्वॉलो करेगी। अभी हमने पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स तो नहीं है, पर सलाइवा तो बकल कैविटी में ही आएगा, तो सलाइवा भी क्या करेगा, इसके पास एंजाइम भी होते हैं सलाइवा में डाइजेस्टिव, प्लस इसके पास पता है क्या भी होता है, इसके पास म्यूकस भी होता है, जो क्या हेल्प करता है, म्यूकस क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। उससे क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है फूड थोड़ा, है ना, उसके साथ मिक्स हो जाता है अच्छे से थोड़ा। एंड दिस हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, क्योंकि हमें स्वॉलो करना है तो उतना रफ नहीं हो सकता है ना, इट हैज टू बी ल्यूब्रिकेटेड बाय म्यूकस। सलाइवा में हमारे पास एक और चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, एक बैक्टीरियल एजेंट है, आई एम राइटिंग इट हेयर। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल है। क्या अब हम फूड ले रहे हैं, क्या पता उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं ना, तो कोई बैक्टीरिया रह ना जाए, तो मतलब रह ना जाए क्या, वहाँ बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने के लिए लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। मूविंग ऑन, टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सी है ना, सलाइवा masticate and mix up the food thoroughly, then mucus in saliva helps in lubrication and adhering the masticated food particles। जो हमने च्यू करें छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, अब कहीं ऐसा ना हो कि कुछ फूड पार्टिकल्स मुंह में अलग अलग सब बिखरे रह गए, तो क्या करते हैं, म्यूकस उन सबको जो हमने थोड़ा बहुत च्यू करा है उस सबको एक पास में चिपकाता है, अधेशन प्रोवाइड करता है, और एक ऐसा एक बॉल टाइप बना लेता है फूड पार्टिकल्स का, विच इज कॉल्ड एज बोलस, ठीक है। इट इज व्हाट, फूड पार्टिकल्स है जो हमने खाए हैं, प्लस म्यूकस और सलाइवा है ना, सलाइवा से म्यूकस सिक्रेट हुआ है, तो आप सलाइवा बोलोगे, डायरेक्ट म्यूकस नहीं, क्योंकि सबका मिक्सचर आता है, ठीक है। तो म्यूकस जो, क्योंकि देखो लिखा ही क्या है, म्यूकस इन सलाइवा, ठीक है, तो उसमें क्या पूरा ये बोलस बना लेता है माउथ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी ये लुब्रिकेटेड भी है, तो क्या फिसल जाता है, नीचे चला जाता है फैरिंग्स में, ठीक है। हमने देखा था ना, बकल कैविटी लीड्स टू फैरिंग्स, तो फैरिंग्स से सीधा कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, ठीक है। फिर ईसोफेगस में क्या कैसे जाता है, स्वॉलोइंग, या फिर इसको एक टर्म देते हैं डिग्लूटेशन, ठीक है। रिमेंबर दिस टर्म डिग्लूटेशन, स्वॉलोइंग के लिए दूसरा टर्म है जैसे च्यूइंग के लिए मास्टिकेशन है, वैसे ही। द बोलस फर्दर पासिस डाउन, अब क्या आएगा, हाँ पेरिस्टाल्सिस, हमने इसकी बात भी कर ली थी। हमारे पास स्मूथ मसल्स है एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में, तो क्या करेंगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस करेंगी एंड रिलैक्सेशंस करेंगी, उससे क्या होगा, फूड नीचे प्रोपेल होगा, ठीक है। तो इट फर्दर पासिस डाउन बाय पेरिस्टाल्सिस। फिर हम कहाँ आ गए, स्टमक में आ गए, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो खुलेगा, है ना। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो वो तो डिक्रीज करेगा डायमीटर, फिर उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, जैसे कि फूड जा पाए अंदर, फिर जब फूड चला जाएगा तो वापस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में आ जाएगा। अब हाँ, अब आप ये सोच रहे होगे, चलो एक और बात यहाँ बताती हूँ, आप ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि ठीक है अब तो अंदर चला गया, उसको बंद क्यों होना है, क्योंकि अब जब अंदर आके स्टमक में, देखो ये ड्राइंग वाला बेकार है, डोंट लाफ एट दैट, ये पता नहीं किडनी जैसा तो नहीं लग रहा है आई एम सॉरी यार, एक सेकेंड, दिस वॉज ईसोफेगस, ये आगे थोड़ा राइट, प्लीज बेयर विद दिस डायग्राम, आई एम सॉरी। यहाँ पर स्फिंक्टर है, यहाँ पर, ठीक है, ये भी आगे खुलेगा, बंद करने के लिए माफ़ी। तो ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, गैस्ट्रोइसोफेजियल, तो अब क्या होगा,
अब ये रिलैक्स होगा तो फूड यहाँ से अंदर आ जाएगा। अब वापस पता है इसको कॉन्ट्रैक्ट, इसको बंद होना पड़ेगा, जिससे कि अब यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। फूड तो हर जगह है, एंजाइम्स आएंगे सब। हमने पढ़ा था कि चर्निंग मूवमेंट्स होंगी, यहाँ पर ऑब्लिक मसल लेयर भी है ना, अच्छे से मिक्सिंग होगी, चर्निंग होगी। तो कहीं फूड वापस क्या हो, रीगर्जिटेट ना हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ से बंद करना पड़ेगा ना, वरना क्या हो जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है कई बार तो हमें, है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, वी हैव दिस स्फिंक्टर टू रेगुलेट दिस, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि फूड वापस ना जाए, है ना। तो ये मजेदार चीज़ हमें मिल गई, है ना, वरना क्या हो जाता है, रिफ्लक्स हो जाता है फूड कंटेंट्स को और वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो रीगर्जिटेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करने के लिए ओके। तो अब फिर सलाइवा की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, ठीक है, आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम मत भूलना ना गलती से भी, कैल्शियम नहीं होता है। और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, इसका दूसरा नाम है टाइलिन, ठीक है, इस नाम से भी आ जाता है, तो टाइलिन याद रखना। एंड लाइसोजाइम, एज आई टोल्ड यू, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए जो फूड के साथ आ जाते हैं अंदर। अब क्या होगा, मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो डाइजेशन तो वहाँ बिगिन हो गई माउथ में, ओरल कैविटी में। तो क्या होता है वहाँ पर पहले, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज बेसिकली क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं एमाइलेज, ठीक है। क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, आपको याद करने में आसानी होगी अगर आप नए नए हो, आई डोंट नो आप और 12th में हो या किस में हो, बट आई एम टेलिंग यू कि क्या होता है अमाइलेज। हम पता है किसी भी एंजाइम को, यार यहाँ पर जगह नहीं है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी थी आप लोगों को चलो एडजस्ट करते हैं। एमाइलेज पता है, हम किसी भी एंजाइम के आगे आपने देखा हो हम एज लगा देते हैं। एज का मतलब होता है टू ब्रेक, है ना। ये हर एक एंजाइम को आगे, जो भी अब हम एंजाइम के आगे लगा रहे हैं, मतलब सफिक्स पे लगा रहे हैं, आगे नहीं सफिक्स पे, ठीक है, और जो हमें ब्रेक करना है वो यहाँ पे आएगा, तो उससे उस एंजाइम का काम और नाम दोनों जस्टिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं अमाइलेज, तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च या ग्लूकोज, पता है क्यों, क्योंकि स्टार्च की अगर हम बात करें, अभी आप बाद में पढ़ोगे कि वो अमाइलोज से, और अमाइलोपेक्टिन अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा तो उसमें होगा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से बना होता है ना, तो अमाइलोज आ गया, है ना। तो अगर इसको तोड़ना है स्टार्च को, बेसिकली यहाँ पर स्टार्च का ही ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें अमाइलोपेक्टिन का कुछ 70 to 80% होता है, और इसका बचा हुआ परसेंट होता है अमाइलोज का। तो अमाइलोज क्या करता है, अमाइलोज हमें स्टार्च का ब्रेक डाउन करना है, तो क्या होगा, अमाइलेज एक्ट करेगा इस पे, ये भी अमाइलोपेक्टिन है ना, तो इस स्टार्च पे एक्ट करेगा और उसको तोड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्च का ब्रेक डाउन हो पाता है यहाँ पे, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हो आप ठीक है। तो एक ये अच्छा पॉइंट मिल गया हमें, है ना। अब हमें एक और चीज़ पता चल गई कि एंजाइम के आगे ये लगा होगा, तो हमें पता चल जाएगा इसका मतलब होता है टू ब्रेक, और वो जो इसके आगे लिखा हुआ उस चीज़ को तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम, ठीक है, इनटू अ डाइसैकेराइड कॉल्ड माल्टोज। अब ये तोड़ रहा है तो किसी चीज़ में तोड़ेगा, कुछ बनाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में, ठीक है बाय टाइलिन, ठीक है। मैं इसका नाम टाइलिन लिख रही हूँ क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज काफ़ी बड़ा पड़ता है लिखने में, और टाइलिन के नाम से इसको पूछ लिया जाता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए और इसका पीएच क्या है, अरे यार यहाँ लिखा तो है 6.8, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन ही है, ठीक है, यही बात कर रही थी मैं इसी की। अब लाइसोजाइम क्या है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, वो क्या करेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन अभी जो मैंने बताया जो हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, वो है पैरोटिड ग्लैंड स्वेल हो जाता है, तो इस वजह से मम्प्स हो जाते हैं, ठीक। ओके, तो 30% यहाँ पर डाइजेशन होगा, स्टार्च का भी कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पार्शियल डाइजेशन होगा, जो ऊपर है मेन डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, हमने पढ़ा था कि म्यूकोसा लेयर में क्या होंगे, ग्लैंड्स होंगे,
ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा हाँ, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, 3 मेजर टाइप के सेल्स होते हैं इसमें। म्यूकस नेक सेल्स, जो कि नाम से पता चल रहा है म्यूकस सिक्रीट करेंगे। पेप्टिक और ज़ाइमोजन सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स। ठीक है, पेप्टिक और चीफ सेल क्या करेंगे, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, ज़ाइमोजन फॉर्म बोलते हैं इस एंजाइम की। ठीक है, इनएक्टिव होता है। अब वो एक्टिव एंजाइम को नहीं सिक्रीट करता है। मैंने कहा था कि जो पीएच ये एंजाइम्स होते हैं, इन्हें एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होता है टू बी फंक्शनल। ठीक है, तो फंक्शनल यानी कि ये कुछ इनएक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते होंगे, है ना, तभी तो फंक्शन होंगे। तो इनएक्टिव फॉर्म से ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जब इसको एसिडिक पीएच मिलता है तो ये क्या बन जाता है, पेप्सिन, है ना, यही होता है एसिडिक पीएच पे। ये कुछ इतना पीएच होता है, एसिडिक यानी HCl की वजह से एसिडिक होता है, तो कुछ इतना पीएच होता है। ठीक है, विल मूव फर्दर। सिक्रीट करेगा प्रोएंजाइम। ठीक है, पेप्सिनोजन बन गया, वो पेप्सिनोजन सिक्रीट हो गया, एक एंजाइम जो कि क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, तो अब आप एक और चीज़ समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर ये पहले ही एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये तो प्रोटीन्स इतने सारे हमारे जो सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें सेल्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट्स है, वो इतने सेल्स होते हैं जो प्रोटीन्स वगैरह से फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो क्या कर देगा, ऐसे तो वो सेल्स अपने खुद के स्टमक के सेल्स को ही डिग्रेड करने लगेगा, है ना, प्रोटीन को तोड़ना लगेगा जिससे वो बने, तो क्या होंगे, सेल्स डिग्रेड होंगे। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, एक तो हमारे पास म्यूकस की लेयर होती है ना, एसिडिक पीएच और से बचाने के लिए। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, एसिडिक पीएच है अगर इतना ज़्यादा, तो हमारे तो सेल्स को तो जल जाना चाहिए ना। हम देखते हैं कि अगर एसिड गिर जाता है किसी पे तो सेल्स बुरी तरह से डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो पूरा स्टमक को हो जाना चाहिए डिग्रेड, पर नहीं होता, क्यों, क्योंकि म्यूकस उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, वैसे पेप्सिनोजन भी ज़ाइमोजन फॉर्म में प्रेजेंट है। अब पेराइटल और ऑक्जेंटिक तीसरे टाइप के सेल्स हो गए, ये क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज इम्पॉर्टेंट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 विटामिन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है यार, इससे हाईलाइट, वैसे तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट तो यही। ठीक है, पर ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये एनीमिया वगैरह में बाद में आप पढ़ोगे, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो पेराइटल और ऑक्जेंटिक तीसरे टाइप के सेल्स हो गए। ठीक, अब बात करते हैं कि स्टमक में कैसे हो रहा है सब। स्टमक में क्या है, 4 to 5 आवर्स तक फूड रह सकता है। क्या होता है उसमें, फूड मिक्स होता है थॉरली, है ना। चर्निंग मूवमेंट्स मैंने आपको बताया, चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं कि किससे होती है, इसमें जो ज़्यादा फैसिलिटेट करती है वो होती है ऑब्लिक मसल लेयर, है ना। तो वो चर्निंग मूवमेंट्स हो रही है, फूड मिक्स हो रहा है, और क्या बन गया है हमारे पास, उस फूड का बोलस से क्या बन गया है, वो फूड काइम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एसिडिक काइम। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into active enzyme pepsin। अभी मैंने रिएक्शन भी लिख दी है ये, ठीक है। And the pepsin converts proteins into proteose and peptones। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स जो प्रेजेंट है, मैंने कहा था कि क्या करेंगे, एसिडिटी को है ना, इतना एसिडिक है तो उसको प्रिवेंट करेंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको एक तो प्रोटेक्ट करते हैं एपिथेलियम को फ्रॉम एक्सकोरिएशन ऑफ हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिसका pH 1.8, ठीक है, 1.8 pH। सो इट इज ऑप्टिमम फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। हम बात करते हैं रेनिन की। अच्छा, अब यहाँ ये चीज़ ना ज़रा याद रख लेना हमेशा के लिए, ये क्योंकि बाद में आती है, रेनिन की स्पेलिंग पे फोकस करना। ठीक है, रेनिन जो है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये एक एंजाइम है स्टमक में, आप प्लीज मैनेज और लिटिल। और अभी हम आगे किडनी में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये नहीं हो जाएगा,
इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, इसका नाम को हम प्रोनाउंस रेनिन ही करेंगे, पर इसकी स्पेलिंग में एक एन है सिर्फ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक हार्मोन हो जाएगा, नहीं मतलब एक हार्मोन है रेनिन जिसमें सिंगल एन है, वेराज रेनिन डबल एन के साथ एक एंजाइम है, ठीक। ये चीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चंस फंस जाते हैं कई बार, मतलब आप गड़बड़ कर देते हो स्टेटमेंट्स पढ़ने में। तो रेनिन इज अ प्रोटीयोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से निकल कर आती है कि मिल्क प्रोटीन क्या है, कैसीन, ठीक है। कैसीन इज द नेम ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क में ये वाली प्रोटीन पाई जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस भी सिक्रीट हो जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, लिपिड्स का डाइजेशन करता है। अब कैसे पता लगा मुझे, नाम में लिखा है लाइपेज, एज मतलब ब्रेक करेगा, लिप यानी लिपिड्स को ब्रेक करेगा, राइट। दिस इज द थिंग। नाउ वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं जो मस्कुलर लेयर जनरेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। थरो मिक्सचर होगा सारा, ठीक है, जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। अब हमारे पास हमने देखा था कि बाइल डक्ट आ रही थी, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही थी, और वो मिलकर क्या बना रहे थे, हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू डियोडनम में खुल रही थी। तो वहाँ से हमारे पास कहाँ क्या क्या आ रहा था, बाइल जूस आ रहा था, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था, ठीक है। वो इंटेस्टाइन में आ गए, अब क्या, डाइजेशन करवाने के लिए। अब इंटेस्टाइन भी तो बैठी है, वो भी कुछ जूस सिक्रीट करेगी। तो हमने अभी पढ़े थे ना क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, बेसिकली चलो वो आगे आएगा, वहीं बात करेंगे। हाँ तो ये चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन बाद में क्या समझ आए तो बताते हैं। क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, ठीक है, इनमें ये भी वही सेल्स है कॉलमनार, इन पे भी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, ठीक है। और ये क्या ऐसे, इनमें क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं ये भी, ठीक है। ग्लैंड्स होते हैं ना म्यूकस वगैरह से, तो सिंपल ट्यूबुलर टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो ये चीज़ है इसमें। और क्या है, कॉलमनार सेल्स होता है, ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है। ओके मूविंग ऑन। तो क्या हो गया, अब हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस भी आ गया, इंटेस्टाइन का अपना भी जो जूस है उसमें जो भी सिक्रीशंस होंगे, ठीक। अब पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस हमने बोल दिया है। हाँ, पेनक्रियाटिक जूस में होगा क्या क्या, उसमें पैनक्रियाटिक जूस में आएगा हमारा इनएक्टिव फॉर्म, अगेन इनएक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर वो नीचे अल्कलाइन पीएच में आके एक्टिवेट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे हमारे पास, क्या, ट्रिप्सिनोजन। हाँ, एक और चीज़ ये मैंने आपको बताया नहीं, ये जाइमोजन जो होता है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म होता है ना, मैंने मार्क करा है इनएक्टिव, और ये जाइमोजन फॉर्म जो होता है, इसके जो सफिक्स होता है वो क्या आ जाता है, ओजन आ जाता है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म है उस एंजाइम की, ठीक है। तो ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन हो गया, तो पीछे ओजन लगा दिए तो क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म बन गई उसकी, ठीक है। ऐसी काइमोट्रिप्सिन है तो उसका काइमोट्रिप्सिन ओजन हो गया। प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कौन से हैं, एमाइलेजेस हैं, लाइपेजेस हैं, और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आ जाता है वो है न्यूक्लियस। अभी मैं आके कंफर्म करूँगी क्यों, बट अभी के लिए न्यूक्लियस याद रखना। बाकी सब भी याद रखना है। ट्रिप्सिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटियोलिटिक इसमें, ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। अमाइलेज आपको बता ही दिया है मैंने, और लाइपेज भी बता दिया है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन किससे एक्टिवेट होगा, एंजाइम है एक इंटेरोकाइनेज, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो इंटेरोकाइनेज एंड सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है। रिएक्शंस यहाँ पर सारी लिखी हुई है, तो आई एम नॉट राइटिंग देम राइट नाउ, आप एनसीईआरटी से देख लेना, अभी मैं मार्क कर दूँगी, ठीक है। फिर बाइल के अब हुआ कि दूसरे, अब एक ये ट्रिप्सिन तो एक्टिवेट हो गया इंटेरोकाइनेज से, अब ये बाकी के ट्रिप्सिन क्या करेगा, बाकी के जो भी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ओके, तो अब बाइल भी रिलीज हुआ था डियोडनम में, तो बाइल के कॉन्सिक्वेंस देख लेते हैं। बाइल में क्या क्या आ गया हमारे पास, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होगा, प्लीज़ ये याद रखना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सारे जूसेस में एंजाइम्स थे, बट बाइल हैज़ नो एंजाइम। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ पिगमेंट्स होते हैं, है ना। बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, इट हैज़ ओनली
pigments and salts, right? Okay, so वेयर वर भी, हाँ, तो बाइल पिगमेंट्स के नेम इसमें लिखे हुए हैं कौन कौन से, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। आपने नाम तो शायद सुने भी होंगे, बिलीरुबिन तो सुना ही होगा सबने, ठीक है, एंड बिलीवर्डन। बिलीरुबिन की भी अलग कहानी है, वो कैसे कैसे बनता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से बनता है, ठीक है, वो डिग्रेड जब हो जाता है हीमोग्लोबिन उसके बाद बनता है उससे और इसलिए अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इसमें जॉन्डिस का वो आएगा कि इस वजह से जॉन्डिस भी हो जाता है जब ये बढ़ने लगता है। चलो वहीं पर बताएंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि इसमें है ही। अब मैंने आपको बता दिया है इतना कि बिलीरुबिन के जब अगर ये बढ़ जाता है बिलीरुबिन तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस, ठीक, ओके। बाइल सॉल्ट्स, अभी जैसा मैंने कहा, और साथ में क्या क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा एंड फॉस्फोलिपिड्स होंगे, ठीक, कोलेस्ट्रॉल, bile salts and phospholipids, ठीक, but no enzymes. It helps in, काम क्या करेगा ये, emulsification of fat. emulsification क्या होता है, फैट के अराउंड ना ये क्या करेगा, ऐसे सब इसके जो सॉल्ट्स हैं वो फैट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फैट का मॉलिक्यूल है वो फैट तो आपको पता ही है, वो एब्जॉर्ब तो होता नहीं है ना, इतनी ऐसे आसानी से, मतलब फैट है ना, वाटर सॉल्युबल चीज़ें जाती है, फैट तो क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा बहुत छोटी छोटी मिसेल्स में, है ना, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इसे याद कर लेना कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल मिसेल्स, ठीक है, जिससे कि इसकी एब्जॉर्प्शन में आसानी हो फैट मॉलिक्यूल के। नाउ बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम के पास और क्या क्या है, गॉबलेट सेल्स है, म्यूकोस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। अब हमने बात की, अभी अभी मैंने आपको बताया था क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, है ना, वो मैंने बताया आपको कि ग्लैंड्स है ना, तो क्यों क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। एक तो हमारे पास क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स, हमने अभी अभी पढ़ा, तो गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन और उन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन की जो वो सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं उनमें क्या है, ब्रश वाटर सेल्स है, ठीक है, वही वाले सेल्स, तो वो क्या मिलके जो सिक्रीट करते हैं, ये वो सिक्रीशन क्या बनाती है, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस, ठीक है सर, इंटेस्टाइनल जूस का नाम है सक्कस एंटेरिकस, ठीक। So this juice contains a variety of enzymes like disaccharidases, like maltase, ठीक है, डाइसैकराइडेज मतलब जो डाइसैकराइड को तोड़ेगा। अब माल्टेज हमने एग्जाम्पल में दिया क्योंकि माल्टेज एक एंजाइम है जो कि किसको तोड़ेगा, माल्टोज को, ठीक है। ये क्यों चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आपको याद होना चाहिए कि स्टार्च जो है वो बकल कैविटी में माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था, है ना, 30% हो रहा था बट हो रहा था, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में। तो अब हमें माल्टोज को भी तो तोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, माल्टेज चाहिए, ठीक है, तो डाइसैकराइडेजेस होता है। मैंने कहा ही था कि पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट आगे कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर तो उसके लिए एंजाइम्स होने चाहिए, राइट, ओके। ऐसी डाइपेप्टाइडेजेस, है ना, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक में, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटियोजेस में, पेप्टोन्स में, है ना, तो इनमें कन्वर्ट कर देता है। अभी वो उसमें तो कन्वर्ट हुए नहीं है, कंप्लीट डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है, फिर डाइपेप्टाइड्स बनेंगे, उसके बाद ये डाइपेप्टाइडेज एक्ट करेगा, उसके बाद वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म। बेसिकली होगा क्या डाइजेशन में, आप एक फंडा समझ लो कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, जो भी हमने खाई, अगर हमने प्रोटीन खाया है ना, तो वो क्या होगी, उस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक। एब्जॉर्प्शन बिल्कुल तभी होता है जब सिंपलेस्ट फॉर्म, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है, चीज़ों का जब वो पूरी कंप्लीट डाइजेस्ट हो चुकी होती है। तो एक चीज़ अभी मैं आपको बता दूं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या ये सब ग्लूकोज वगैरह किस में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसैकराइड्स, ये उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। प्रोटीन्स किस में होते हैं, अमीनो एसिड्स में, है ना। फैट्स किस में होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल,
ठीक है, यही बेसिक 3 होते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी होते हैं। ओके, तो हाँ, अब आती है मज़ेदार क्वेश्चन वाली बात, जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि डाइपेप्टाइडेजेस अभी हो गए, लाइपेजेस हो गए और न्यूक्लियोसाइडेजेस। अब आप इसको ना न्यूक्लियस से कंफ्यूज मत कर देना। हमने अभी पढ़ा कि पैनक्रियाज में से क्या निकलता है, न्यूक्लियस, ठीक है, वेयर एज इंटेस्टाइनल जूस से निकलता है न्यूक्लियोसाइडेज। तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है क्योंकि लोग इसे मिस कर देते हैं, ठीक है। ये याद रख लेते हैं लोग कि न्यूक्लियस भी इसमें होता है, जबकि न्यूक्लियस इज फाउंड इन पैनक्रियाज, राइट। पर हम तो नहीं भूलेंगे, अब हमने तो पढ़ लिया, ठीक है। ओके, म्यूकस बाइकार्बोनेट्स के साथ अगेन वही प्रोटेक्शन करेगा और अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा उन एंजाइम्स के फंक्शन के लिए, और अल्कलाइन मीडियम क्या है, 7.8 का पीएच है, ठीक है, इतना पीएच चाहिए। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो चुके थे, प्रोटियोल्स में कन्वर्ट हो चुके थे, ठीक है। दीज वर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि कहाँ हुए थे, स्टमक में। अब क्या होगा इनके साथ, जो हमारे पास इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज से जूस आया है, ट्रिप्सिन आया है, स्पेशली प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ना, काइमोट्रिप्सिन आया है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब क्या है, प्रोटियोलिटिक। तो ये क्या करेंगे, इनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने पढ़ा क्या है, डाइपेप्टाइडेज, तो उसको किस में कर देंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स में, ठीक है, क्योंकि डाइपेप्टाइडेज मतलब 2 पेप्टाइड्स है ना, 2 मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड ने 2 इनको जोड़ रखा है मॉलिक्यूल्स को। तो अब जब इनको तोड़ने वाला आ जाएगा, इनका जो एक बॉन्ड है बीच का, उसे तोड़ने वाला डाइपेप्टाइडेज आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपलेस्ट यूनिट। नाउ आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अभी क्या होगा, स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये काइम में जो थे अब वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, है ना, पैनक्रियाटिक अमाइलेज से। मैंने आपको बता दिया था कार्बोहाइड्रेट से अमाइलेज काम करता है। अब क्या बन जाएंगे, डाइसैकराइड। जैसे कि माउथ में क्या बन गया था, बकल कैविटी में जब हुआ था, स्टार्च ने बना लिया था, है ना, माल्टोज बना लिया था, जो कि क्या था, अगेन डाइसैकराइड था, है ना, बकल कैविटी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक डाई वो बन गया है, डाइसैकराइड। अब फैट क्या करेंगे, लाइपेज आके फैट्स को तोड़ेंगे, क्या बनेगा, जिससे हाँ, और बाइल की हेल्प से हमने देखा कि मल्सिफिकेशन कर रहा था बाइल, तो क्या बना दिया, डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब मोनोग्लिसराइड बन गए, अभी तो और कन्वर्ट होंगे, पर अभी के लिए लाइपेज ने इनको डाइग्लिसराइड बनाया और अभी मोनोग्लिसराइड बन गए, ठीक है। डायन मोनो में लाइपेजेस ने तोड़ दिया। अब न्यूक्लियस इन पैनक्रियाटिक जूस मैंने हाईलाइट भी किया है, क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा, है ना। हमने कोई प्लांट का सेल वगैरह खाया होता है ना, तो उसमें तो उसका डीएनए आएगा, है ना। तो हम क्या चाहिए, उसे ब्रेक करने के लिए भी हमें चीज़ें चाहिए, न्यूक्लियस की और न्यूक्लियोसाइडेज की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या बना लेगा वो, न्यूक्लियस की हमने क्या पढ़ा है कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, राइट। न्यूक्लियोटाइड्स ही तो मिलकर बनाते हैं वो ये न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियस ने इसको अपने छोटे फॉर्म में तोड़ा। अब न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से बने होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड होता है ना, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या आ जाता है, हमारे पास शुगर आ जाती है ना, राइबोज, जनरली राइबोज या डीऑक्सी राइबोज अगर डीएनए है तो, और साथ में एक बेस आ जाता है, प्यूरीन या फिर पिरिमिडीन, है ना, वो भी हम आपको पता होगा, है ना, प्यूरीन बेसिस होते हैं, पिरिमिडीन होता है, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और यहाँ पर फॉस्फेट भी जुड़ जाता है, ठीक। और शुगर कौन सी होती है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज।
आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा पूरा, है ना। जल्दी से बस ओवर होने वाला है। अब क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड बन गए। अब न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोसाइडेज, जो कि कहाँ से आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, किसमें तोड़ने का, शुगर्स में, बेसेस में। अब एंजाइम्स जो है सकस एंटेरिकस में, वो क्या करेंगे, वो अब जो भी एंड प्रोडक्ट्स बने यहाँ पर अभी तक, उनको और सिंपलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये सब म्यूकोसा के पास होगा, जिससे कि एब्जॉर्प्शन इजीली हो पाए, राइट। तो ये यहाँ पर दे दिया है पूरा टेबल, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, माल्टोज और ये सब क्या है, डाइसैकेराइड्स। चेंज माय पेन कलर, है ना। डाइसैकेराइड्स आ गए, ठीक है। शुगर्स, ठीक है, सुक्रोज क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है। दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे, अभी शायद आपको ना पता हो कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, बट मैंने अभी के लिए बता दिया है, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हाँ, ये याद रख लेना कि माल्टोज किस किस का किस किस से मिल के बना है, ठीक है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं माल्टोज, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बनाता है लैक्टोज, और एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनाता है सुक्रोज, ठीक है। इन पे रिस्पेक्टिव एंजाइम्स एक्ट करेंगे। डाइपेप्टाइड में बताइए, मैंने आपको समझा दिया। न्यूक्लियोटाइड का भी मैंने आपको समझा दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि फैट्स जो है वो पहले डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बनेंगे, और फिर क्या बनेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब आते हैं बस थोड़ा सा बचा है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या हो रहा है, हमारा डिओडम में हो रहा है। अब क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, जेजुनम इलियम रीजन में। एंड जो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो यहीं हो जाता है। फंक्शन क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का, ठीक है। ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। फिर म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ पर वो भी हेल्प करता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट आया है उसको ल्यूब्रिकेट करने में, है ना, जिससे कि वो इजीली उसका पैसेज हो जाए। ये दो फंक्शंस होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। अब मैंने आपको बताया था पहले कि क्या होता है वहाँ, हमारे इलियम हो गया लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वो सीकम में जाएगा, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इट इज़ गार्डेड बाय इलियोसीकल वॉल विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर, है ना। उस अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को स्टोर कर लिया जाता है रेक्टम में, ठीक। फर्दर हमारे पास, मैंने आपको बीच में एक दो चीज़ें बताई थी कि कुछ हार्मोन रिलीज होगा तभी ये होगा, है ना। तो वो हार्मोन्स जो होते हैं, मैंने ये भी कहा था कि वो यहाँ पे लोकल हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ से सिक्रीट होते हैं। और जो न्यूरल मैकेनिज्म्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, सीएनएस से भी रेगुलेट होते हैं, है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये भी, कि ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है पता है, वो इंक्रीज करता है डाइजेशन। तो जब डाइजेशन इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट होंगे, है ना। तो सिक्रीशन को प्रमोट करता है ना। सिंपैथेटिक जबकि क्या करता है, इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, राइट। अब समझ गए, ठीक है जी। ये आ गया, ठीक है। तो ये एक हो गया, मैंने बता दिया आपको एएनएस का कंट्रोल। अब बाकी एक इंटेरिक नर्वस, देखो इन्होंने लिखा है कि लोकल मैकेनिज्म्स होते हैं, तो लोकल में पता है क्या, इंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसको पता है क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, आप भी कहते होगे कई बार कि मेरी को गट फीलिंग आ रही है ना। गट इज व्हाट, गट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो गट फीलिंग पता है इतनी ट्रू क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्व प्लेक्सस होते हैं, ठीक है। तो ये जो नर्व प्लेक्सस होते हैं, ये इसलिए इसको मिनी ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं बताऊँ ये कहाँ पर होता है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, एक
हमने एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पढ़ी थी, हमारे पास 2 प्लेक्सस होते हैं जो इंट्रिंसिक इनर्वेशन फॉर्म करते हैं। बेसिकली इंट्रिंसिक कैसे, क्योंकि ये वॉल कैनाल के वॉल के अंदर ही प्रेजेंट है। पता है, एक होता है हमारे पास मिजनर्स और एक होता है माइंट्रिक। ठीक है, आप पता है इसको कैसे याद कर सकते हो? माइंट्रिक मतलब मसल है ना, मतलब मायो को मसल से, तो MY से आप मसल करके याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही किया था मतलब। तो ये पता है कहाँ होता है, इसलिए ये जो दो मसल की लेयर है इनके बीच में, यहाँ पर ये क्या होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस। यहाँ पर नर्व प्लेक्सस होते हैं ना, नर्व्स होंगे। और दूसरा होता है मेजनर्स प्लेक्सस, है ना। ये क्या करता है, मेजनर्स प्लेक्सस सिक्रीशंस में हेल्प करता है। ये कहाँ होता है, सब इसको पता है सबम्यूकोसल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सब इनर सर्कुलर लेयर एंड सबम्यूकोसा के बीच में। इसको दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ। तो ये यहाँ कोई, ठीक है, तो ये मेजनर्स प्लेक्सस है। ठीक, ये कहाँ होता है, सबम्यूकोसा और उसके बीच में, उसके किसके, सबम्यूकोसा एंड इनर सर्कुलर लेयर के बीच में, राइट। तो ये नर्व प्लेक्सस होते हैं जो मसल के बीच में, वो क्या करते हैं, आप सोच सकते हो कि थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस में एंड मिसनर्स में ऐसा आ रहा है, यहाँ भी सबम्यूकोसा, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो। और ये किस में हेल्प करता है, एस फॉर सिक्रीशंस में। ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मूविंग ऑन। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव होता है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन में यही तो है कि जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है ना, एक जगह से फैसिलिटेटेड होता है तीसरे टाइप का। तो इन 3 टाइप से होता है ये ना। एक्टिव इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। तो क्या होता है, ये आपको याद ही करना है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो लाइंस है ना NCERT की, ये याद कर लेना कि जो स्मॉल, क्योंकि एक बार पिछली बार NT अभ्यास एग्ज़ाम जो शुरू हुआ था टेस्ट ऑनलाइन, उसमें ये क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो पता है क्या स्टेटमेंट्स थी, एग्जैक्ट NCERT की लाइंस थी, पर उसमें क्या था, बच्चे तो ध्यान से जनरली पढ़ते नहीं कि यहाँ पर स्मॉल लिखा है या सम सब्सटेंस लिखा है ना। उन्होंने इस पे क्वेश्चन, मतलब लाइंस तो यही थी, पर अगर पढ़ने वाला लाइन पढ़ेगा और उसने तो ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि लाइन ही स्मॉल अमाउंट्स ऑफ दिस आर बाय सिंपल डिफ्यूजन, है ना, सिंपल डिफ्यूजन से, तो ये याद नहीं रहता है कि स्मॉल अमाउंट था या लार्ज अमाउंट, किससे कौन सा प्रोसेस होता है, राइट। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जो जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट। अब हम फैटी एसिड्स की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अमीनो एसिड्स हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। अमीनो एसिड्स का, मोनोसैकेराइड्स का हमने पढ़ लिया, है ना, आयंस का पढ़ लिया। और किसका पढ़ लिया, यहाँ पर ग्लूकोज, अगेन मोनोसैकेराइड का, अमीनो एसिड का। तो इन सब के ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े, पर अभी तक हमने फैट का नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने कहा था कि फैट डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्यों, इनसॉल्युबल है। तो ये क्या करते हैं, पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स, है ना, छोटे छोटे क्या बनते हैं, मिसेल्स। हमने वहाँ एमल्सिफिकेशन में भी जैसे पढ़ा था कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं फैट मॉलिक्यूल को, एंड क्या बनाते हैं, छोटे छोटे मिसेल्स। तो मिसेल बनकर कहाँ जाते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। अभी हमारे पास क्या था, ल्यूमन में सब पड़ा हुआ था, डाइजेस्ट हो रहा था। अब ल्यूमन में हमारे पास क्या आते हैं, फैटी एसिड एंड कहाँ गए, मिसेल्स से म्यूकोसा में चले गए, है ना,
म्यूकोसा क्या एपिथेलियल है ना, एपिथेलियम में गए, वहाँ पर भी क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, reformed into small protein coated chylomicrons which is transported into lymph vessels and villi। हमने पढ़ा था ना लैक्टील होता है विलाई में, है ना, और हमने पढ़ा था विलाई किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में। तो विलाई में क्या होगा, जो लिम्फ वेसल्स उससे जा रहे थे वो इसको कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गए, अब वहाँ पर क्या बने, इनका फॉर्मेशन हुआ, काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्जन हुआ, ठीक है। जो फैट, ये क्या था बेसिकली, फैट के मॉलिक्यूल्स थे ना, हमने कहा था स्मॉल ड्रॉपलेट्स बन चुके हैं ना, तो ये फैट के मॉलिक्यूल्स किससे सराउंड हो गए, प्रोटीन से। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पर, काइलोमाइक्रॉन का ये फैट हो गया, और ये मैंने मान लिया कि ये क्या हो गया, प्रोटीन सा हो गया, और ये क्या बन गया, काइलोमाइक्रॉन। लेट मी डिफरेंशिएट इट विद सम अदर कलर, लेट्स, येलो होता है यार, फैट थोड़ा येलो से दिखाता है ना, और ये प्रोटीन हो गया। दिस इज फैट ड्रॉपलेट, और ये क्या हो गया, प्रोटीन कोट, राइट। ठीक, दिस इज काइलोमाइक्रॉन। अब आपको याद रहेगा, मैंने इसलिए बना के दिखा दिया है। अब लिम्फ वेसल्स क्या करेंगी, जाकर लिम्फ वेसल्स मिलती किस में, वेन्स में ही मिलती है ना, तो क्या अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में ही आ जाएगा, ठीक है। तो लैक्टील्स इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। नाउ एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा कि ऑलमोस्ट सब पार्ट में थोड़ा थोड़ा टाइप का। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, हम कई बार क्या करते हैं, कोई कोई ड्रग मैं आपको बीच बीच में थोड़ा क्लिनिकल बताती रहती हूँ जिससे कि इंटरेस्ट आए, ठीक है, आप बोर ना हो। तो हम कई बार क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमें बहुत जिनका हमें बहुत जल्दी से लेनी होती है, लाइक जो कई बार हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, जो जल्दी मतलब कि अगर हम ब्लड में देंगे तो थोड़ा ट्रैवल होने में टाइम लगेगा, है ना, ब्लड फ्लो करेगा तो कब तक हार्ट तक जाएगा। पर हमें जो ब्लड जल्दी से, जो मेडिसिन जल्दी से सर्कुलेट करवानी होती है, हम जनरली, आपने सुना होगा, कहते हैं टंग के नीचे रखने के लिए बोलते हैं उस ड्रग को, है ना, क्योंकि हमारे टंग के नीचे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो किस में हेल्प करती हैं, एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो एक ये चीज़ होती है, तो हम ड्रग्स वहाँ पर कर देते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ पे जो भी कैपिलरीज होती है वो उसको एब्जॉर्ब करके जल्दी से उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें आपको कुछ कुछ है ना कि याद उसमें थोड़ा थोड़ा होता है एब्जॉर्प्शन जिसमें, तो वो आपको करना है, तो याद कर लीजिएगा इसको। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो सब में बता ही दिया है कि क्या क्या था, थोड़ा थोड़ा क्या, मैंने पूरा ही बता दिया है। स्टमक का देख लेना, जैसे वाटर है या सिंपल शुगर देन अल्कोहल, ठीक है। और माउथ का वही मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो ही रहा है सारा, इतना कुछ है ना, सारा प्रिंसिपल ऑर्गन है ये एब्जॉर्प्शन का, आपने क्या बात कर दी। लार्ज इंटेस्टाइन में मेजरली वाटर का एब्जॉर्प्शन आप याद रखना, और मिनरल्स का, ठीक है, मिनरल्स। देन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस क्या होंगे, फिर यूटिलाइज होंगे। अभी हम ब्लड में चले गए तो अब क्या होगा, इनका यूज़ होगा, है ना, जब हमें एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज जाएगा, है ना, इंसुलिन और वो सब उसको अलग से रेगुलेट करेंगे, वो सब अलग है, ठीक है। ऐसे थोड़ा इंटरेस्ट के लिए और जनरल नॉलेज के लिए बता रही थी, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन होगा एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेशन, ठीक। अब जो डाइजेस्टिव वेस्ट था वो क्या हो जाएगा, रेक्टम में जाएगा, और एक न्यूरल रिफ्लेक्स आएगा जो कि क्या हमें करता है कि हमें लगता है कि वी हैव टू रिमूव दैट, राइट। तो एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है विच इज रेगुलेटेड बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है, ठीक। अब इससे रिलेटेड भी वो हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, विल डिस्कस हेयर इन द लास्ट पेज। क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, है ना, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, ये सब इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस, है ना, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का।
तो पहला अगर अब हम डिजीज़ पढ़े तो वो है जॉन्डिस। मैंने आपको पहले बताया था कि जो जॉन्डिस किससे हो जाता है, बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से, स्पेशली बिलीरुबिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। बिलीरुबिन पता है कैसा होता है, येलो पिगमेंट होता है, तो इसकी वजह से क्या आता है, येलोइश हो जाती है बिलो स्किन ऑफ आईज, है ना, आईज के नीचे वाली स्किन पे हो जाता है ना, स्किन येलोइश टर्न होने लग जाती है ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन। और ये वैसे मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म से बनता है कहीं ना कहीं, है ना। हीमोग्लोबिन आपको पता है हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन प्रोटीन, है ना। ये तो प्रोटीन है, ये तो डिग्रेड होगा तो क्या होगा, अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है, तो ये तो वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा। हीम क्या होता है, ये बाद में आप पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा, ये डिग्रेड होकर बिलीरुबिन बनाता है, ठीक है। तो जब इसका डिग्रेडेशन होता है कई बार, तो ये भी बिलीरुबिन ऐसे हमारा बनता रहता है, क्योंकि हमने देखा था बाइल पिगमेंट हमारे डाइजेशन में भी चाहिए तो उसमें भी होता है, बट एक्सेस तो गलत है किसी भी चीज़ की, तो एक्सेस होगी तो जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक। वॉमिटिंग पे आ जाते हैं, अभी मैंने तब भी आपको बताया था कि जो इजेक्शन हो जाता है स्टमक कंटेंट्स का वापस माउथ में आ जाते हैं, ठीक है। और ये पता है कहाँ से कंट्रोल होता है, मेड्यूला में। मेड्यूला हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है ना, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं हम वॉमिट सेंटर। तो ये पूछ लिया जाता है कि वॉमिट सेंटर कैसे बोलते हैं, मेड्यूला को, ठीक है। तो उससे पहले आपको कई बार देखा होगा कि वॉमिटिंग से पहले आपको थोड़ा हेडेक और ऐसा, तो मतलब यू लाइक फील सो बैड कि आपको एक्चुअली आपको लगने लगता है कि हाँ आपको शायद वॉमिटिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, जो मेड्यूला से कंट्रोल होता है। डायरिया की बात करते हैं। डायरिया में क्या है, एक्सेसिव बोवल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो ये हमारा फूड होता है वो ज़्यादा ही डिस्चार्ज होने लग जाता है, वो भी बहुत थोड़ा फ्लूइड फॉर्म में, है ना। तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, वो एक्सक्रीट ही होता चला जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है पेरिस्टालसिस की। तो बार बार वो आपको रिफ्लेक्स भी आता है कि यू नीड टू रिमूव दैट, एंड वो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता है डायरिया में। कॉन्स्टिपेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डायरिया। उसमें क्या होता है, रिटेन रह जाती है फेसेस, बोवल ठीक से नहीं हो पाता है, इरेगुलर होते हैं। तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में आपका ठीक से डेफिकेशन जो होता है, रिमूवल ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है, रिमूवल ठीक से नहीं हो पाता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर इंडाइजेशन की अगर हम बात करें, तो फूड अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें क्या आता है, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया है, ठीक है, ऑलरेडी हमें ऐसा लगने लगता है। ये किसी वजह से होता है, या तो एंग्जाइटी, है ना, एंग्जाइटी जब आप कुछ स्ट्रेस में होते हो तो आपको भूख नहीं लगती है, राइट। और प्लस यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, स्ट्रेस में होते हो तो क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है, और इसलिए आपके क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स भी सिक्रीट नहीं होते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट्स द दिस एंजाइम सिक्रीशन, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको यहाँ से रिलेट कर दिया कि सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, फियर में, स्ट्रेस की कंडीशंस में रिलीज होता है ना, तो क्या अब आप खाना खाने का तो नहीं मन करता है ऐसी कंडीशंस में, है ना, इसलिए। या फिर क्या हो गया, स्पाइसी फूड है तो नहीं आप खा रहे, ओवर ईटिंग हो गई है ना, तो इट लीड्स टू फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड कंडीशन इज नोन एज इंडाइजेशन। अब बात करते हैं एक चीज़ की। अभी हमने इतनी सारी पढ़ी और मैंने शुरू में ही कहा था कि जो फूड हम ले रहे हैं वो सब क्या बनाएगा, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी अभी कुछ अमाउंट में बनते जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कुछ अमाउंट होता होगा ना ऑब्वियसली, जिसमें ये फॉर्म हो जाते हैं, है ना, हमारी बॉडी में। तो हम क्या कर, अब हमें इनसे चाहिए एनर्जी। तो अगर हम इन जनरल देखें कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेट्स से हमारा 100 ग्राम हमने लिया कार्ब्स, लेट्स से कह रही हूँ, ठीक है, तो जो बाहर कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली कंबशन करने में, कंबशन रिएक्शन ही तो होती है हमारे बॉडी में, है ना। तो कंबशन रिएक्शन में अच्छा एक और चीज़, पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू तो सबने सुना हुआ है ना। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को बर्न करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक हो गई
कैलोरीफिक वैल्यू जो हम नॉर्मली देख रहे हैं कि बाहर हो रही है। अब हमारी बॉडी में जब कंबशन हुआ, जब ये सब कंबशन हुआ तो क्या होगा, हमारी बॉडी में भी एनर्जी रिलीज होगी, है ना, इसका फंक्शन ही ये है। पर ऐसा देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है वो उतनी नहीं होती है सेम अमाउंट के लिए जितनी हमारी बॉडी के बाहर मतलब एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो जो हमारी बॉडी में उन सब चीज़ों से एनर्जी रिलीज होती है वो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है, द एक्चुअल एनर्जी विच इज लिबरेटेड बाय दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उनसे थोड़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ मैकेनिज्म्स है ना, थोड़ा हीट डिसिपेट भी हो रहा है, कुछ और भी हो रहा है, यूटिलाइजेशन, है ना, ये किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो जो ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कैलोरीफिक वैल्यू, है ना, ये तो कैलोरीफिक वैल्यू है और ये फिजियोलॉजिक वैल्यू है। तो कम है फिजियोलॉजिक वैल्यू, है ना, क्योंकि उतना कंबशन एग्जैक्टली नहीं होता है जितना, मतलब उतना एनर्जी रिलीज नहीं होता है जितना ये, है ना। प्रोटीन का भी देखो 5.65 से है, तो ये आप लर्न कर लेना, ये नई वाली एनसीईआरटी में दे रखा है बट मैंने इस पर लिखा नहीं था तो मैंने ऐसे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ये सब किसमें, किलो कैलोरी पर ग्राम है, ठीक, कितनी एनर्जी रिलीज हुई पर ग्राम, राइट। यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज। नाउ एक और चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए लाया है। डिफरेंसेस बिटवीन दिस क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। कोई आई एम सॉरी या तो क्वाशियोरकर आपने शायद हमने सुना ही होगा, है ना, एक डिजीज़ है, और मैरास्मस भी एक डिजीज़ है। ये सब क्या है, बच्चों की डिजीज़ है। क्वाशियोरकर किसकी डिजीज़ है, किड्स अप टू 5 years ऑफ एज, है ना, 1 to 5 years में होती है, अप टू 5 नहीं 1 to 5, बिलो 5 year की एज में क्या होता है, बच्चों को मैरास्मस हो जाता है। होता क्या है, क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जबकि मैरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आते हैं वो मैंने अच्छे से समझने के लिए इमेज अटैच की है ना, जिससे कि आप अच्छे से देख के विजुलाइज करके याद रख सको कि क्या होता है। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट क्वाशियोरकर, देखो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई है तो हमारी जो मसल है ना वो प्रोटीन से बनी हुई है, लिम्स है ना, हमें ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन्स चाहिए बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो हमारी जो मसल्स हैं वो भी, और जो टिश्यूज़ है इतने सारे हैं ना, तो लिम्स वगैरह सब की क्या हो जाएगी, थिनिंग हो जाएगी, उनकी ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वेस्टेड मसल्स एंड थिन लिम्स, ठीक है, आप देख पा रहे हो उसके हाथ कितने पतले हैं, ठीक है, पैर भी पतले ही हैं। तो थिन लिम्स एंड वेस्टेड मसल्स। मैंने कहा कि प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर में प्लस डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना। तो जो बॉडी की और ब्रेन की ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो लेग्स में स्वेलिंग होने लगेगी, दिस इज नोन एज एडिमा। आपको पता है क्या, अभी आप समझोगे नहीं, पर अगर कोई है मतलब जो मतलब एडिमा, ये पूरा एक बड़ा प्रोसेस है तो मैं आपको पूरा नहीं समझा सकती हूँ, पर एक फैक्टर होता है कि अब हम कह रहे हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का अगर लॉस हो जाता है ना तो क्या होता है, हमारी फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इट विल लीड टू एडिमा, है ना, लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज अ कॉज ऑफ एडिमा। तो इसलिए प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो एडिमा हो रहा है, ठीक है, आप याद रख पाओगे इससे। फिर अब मैंने देखो रेड से लिखा है सब कुछ जिससे कि आप ये याद रख पाओ कि इसमें रेडिश हेयर हो जाते हैं, ठीक है, एंड डायरिया, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने अलग पेन से भी लिखा है वो है पॉट बेली। देखो जो सबसे बड़ा हमें अलग फीचर दिख रहा है वो क्या है, इसकी पॉट बेली, ठीक, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। फिर हम बात करते हैं मेरास्मस की, इसमें तो प्रोटीन तो गया ही, साथ में कैलोरी भी गई, ये तो और ज़्यादा सफ़र करेगा। देख रहे हो उसकी हालत कैसे, क्या इसके रिब्स इतने अच्छे से दिख रहे हैं क्योंकि इसकी इतनी पतली स्किन हो चुकी है, कुछ टिश्यूज़ ही नहीं बचे हैं, प्रोटीन भी नहीं है, कैलोरी भी नहीं है, सब यूज़ हो चुका, डेफिशिएंट है सब कुछ। तो
क्या क्या सिम्टम्स होंगे? टिश्यू प्रोटीन्स है ना, इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी इतनी है। थिन लिम्स हो जाएंगे, इमैशिएटेड बॉडी है ना, इमैशिएटेड मतलब बहुत थिन स्किन और ऐसे बिल्कुल सिकुड़ी सी बॉडी हो जाएगी। इसके तो कितने थिन लिम्स है ना, ना ही कैलोरी है ना ही प्रोटीन है, एकदम थिन लिम्स। प्रोमिनेंट रिब्स, क्योंकि यहाँ पे स्किन ही नहीं है तो रिब्स इतने प्रोमिनेंट आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो प्रोमिनेंट रिब्स हो गए, और स्किन भी देख रहे हो आप, ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन है ना। इसका तो सब कुछ इसमें दिख रहा है, तो उस इमेज को कैप्चर कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है कि आप आइडेंटिफाई करो, या तो आपको ये केस दे देते हैं और डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देते हैं, है ना, मेंशन कर देते हैं 1 ईयर से कम है तो आप मेरास्मस की तरफ इंडिकेशन लेके जाओगे, ठीक है ना। और बाकी ये सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो हमने कितना सारा डिस्कस करा, एंड हमने काफ़ी जल्दी डिस्कस कर लिया, एंड आई होप आपको सब समझ आया होगा। Do like the video, do subscribe the channel for more good videos I'll bring for you, and you can tell your views in comments. Plus आज हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर किया, सो आई होप यू ऑल enjoyed, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अच्छे से खाओ पियो, अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो। आज हमने इतना सारा डाइजेशन पढ़ा है तो यू शुड नो कि कैसे कैसे हमारे बॉडी में क्या क्या चल रहा है, तो किस किस चीज़ के लिए हमें कितना कुछ चाहिए, है ना। तो आपको फूड का एक प्रॉपर, है ना, यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट, ठीक है। यू ऑल आर इन ग्रोइंग एज, तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट। सो अच्छे से खाओ पियो एंड मस्त रहो, पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम आए तो शेयर करो। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।